होपफुली ये आज की डेडलाइन दी हुई थी असाइनमेंट की। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वी I'll do it. Okay, the first thing is FeCl3 is given or solubility product से तो FeCl3 solid aqueous लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिसॉल्व होता है and it forms 4 ions. One is Fe3 plus and there are 3 Cl minus 1 ions in aqueous state. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर the Kp value is already given, so you have the Kp value. Solubility ढूंढनी है कि what's the solubility, कि कितना मोल per dm cube FeCl3 actually dissolve हो रहा है. तो आप कहते हो कि x मोल per dm cube has dissolved. So if x mole per dm cube has dissolved, तो Fe3 plus ions x mole per dm cube होंगे और Cl ions की concentration 3 times होगी. ठीक है, that's going to be your concentration of the ions in solution. Assuming कि saturated solution के अंदर x mole per dm cube dissolve हो रहे हैं, and that's your solubility. Then you write the Kp expression, which in this case would be Fe3 plus. There's only one Fe3 plus, so it would be Fe3 plus concentration. और Cl ions कितने Cl ions आपके पास, उसकी जो concentration होगी that would be cubed. Now the value of Kp is given. It's given as, in the question it's given as 0.012 mole per dm cube. Fe3 plus की concentration हमने x ली थी और Cl ions की concentration हमने 3x ली थी. So it's going to be 3x cubed, and then you solve for this. This would actually come out to be 3 cube कितना होता है 27 x to the power of 4. It would be 0.012 mole per dm cube, and then you solve for x 27 को इधर ले आओ और फोर्थ रूट निकालो इस पूरी चीज का. So if you use your calculator, it would be, it's going to be 0.012 divided by 27. ठीक है, ये आया और फिर फोर्थ रूट. And my calculator is giving me 0.145. So it's giving me 0. X की value is coming out to be 0.145 mole per decimeter cube. ठीक है, so that's how you're going to solve this particular question. इस तरह के हमने questions कल भी किए थे. ठीक है, बाकी हम past papers में करेंगे. Now moving on, किसी को ये clear है question, किसी को issue तो नहीं है? Farzan, is this clear? Fatma, Hassan, is this clear? Yes or no, is this clear? यस सर, क्लियर है सर. जो आपने इसका एक और पार्ट दिया था आपने करने के लिए सर, उसमें जो आंसर था सर वो बहुत छोटा आ रहा था. तो सर मैंने पूछना था कि ये कोई मतलब ये आपने अपने से क्वेश्चन दिया है फिर पास्ट पेपर से दिया? नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है, तो हो सकता है छोटा आ रहा हो. ठीक है, ओके सर. और छोटा होगा, बहुत छोटा होगा एक्चुअली, क्योंकि वो स्क्वायर और फिर क्यूब हो रहा है ना, तो यस सर. 0.0018 वैसी बहुत छोटी वैल्यू है. उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो फिर बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी. ठीक है, ओके सर. अच्छा खैर, ये मैंने अपनी तरफ से दिया हुआ था. अच्छा, मूविंग ऑन, related to KSP again, there's a thing called the common ion effect. Now, a common ion effect is कि पहले तो simply solubility is a reversible reaction if it's a saturated solution. For example, if you're dissolving AgCl solid, तो saturated solution के अंदर dissolve हो भी रहा होगा, silver ions बन रहे होंगे,
Cl ions बन रहे होंगे, dissociate, it would be dissociating and forming aqueous ions, and at the same time the reverse would also be happening, saturated solution के अंदर crystallization भी हो रही होगी और वापस AgCl solid भी बन रहा होगा. Anyways, it's a reversible reaction, and reversible reactions के अंदर Lee-Shatler principle apply होता है, which means कि अगर आप solution के अंदर ना किसी तरह Cl ions की concentration increase कर दो, ठीक है, by adding Cl ions from somewhere else, कहीं से भी ऐड कर सकते हो. You could add NaCl aqueous into the solution. तो NaCl एक common ion introduce कर देगा, which is कि NaCl has Cl ions. तो solution के अंदर Cl ions की concentration जो होगी वो एकदम से ज्यादा हो जाएगी. और अगर Cl ions की concentration ज्यादा हो जाएगी, what would happen is, according to Lee-Shatler principle, what's going to happen is that the equilibrium would shift in the backward direction. क्योंकि अगर आप किसी आयन की concentration increase करते हो, तो इक्विलिब्रियम उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, tries to do the opposite. So if somehow in the solution one of the ions increases in concentration because you added something else, उसकी वजह से एक common ion बीच में आ जाता है, which makes the Cl ion concentration higher, the equilibrium would shift backwards and the solubility decreases. So a higher Cl ion concentration would decrease solubility. Would decrease solubility of AgCl. Or NaCl is the one which introduces a common ion into the solution. Which in this case is the Cl ion, क्योंकि वो दोनों में common है. तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा NaCl ऐड करने से, और ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, and AgCl जो है वो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. It would, instead of dissociating and dissolving, it would start forming AgCl solid. So this is what is meant by the common ion effect. Now, questions related to अच्छा, एक तो ये word sentence याद रखना है, common ion effect, क्योंकि they're going to ask you about questions like these के past papers के अंदर वो simply कहेंगे कि AgCl की solubility decrease की हो जाती है जब आप NaCl ऐड करते हो. तो उसकी रीजन ये कि AgCl की concentration, आपने ये term phrase exactly use करना है कि common ion, because of common ion effect, the Cl ion concentration increases, so the equilibrium shifts backwards. फिर वो पास पेपर करेंगे, उसके अंदर हम ये लिख लेंगे. The next thing is कि calculations related to common ion effect. अच्छा, let's assume कि अभी we haven't added NaCl into the solution, और AgCl का ना Ksp की value that's given to us. तो first part question है कि जी find solubility of अच्छा, find solubility of AgCl, and you're given the Ksp value. The Ksp value is provided. Ksp is given as 2 into 10 power minus 5, let's say. -6 कर लेते हैं, ठीक है. So it's very less. और ये इसका Ksp का जो यूनिट होगा, that would be mole squared Da -6. अच्छा, so the first part is forget NaCl right now कि common ion बीच में इंट्रोड्यूस किया. तो solubility कितना डिसॉल्व होगा? तो let's say x मोल per dm क्यूब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर AgCl डिसॉल्व हो रहा है. तो सिल्वर आयंस कितने बनेंगे? x मोल per dm क्यूब, और Cl आयंस कितने बनेंगे? x मोल per dm क्यूब. 1:1 है. So if I write the Ksp expression now, the Ksp expression would come out to be silver ion concentration into Cl ion concentration. So it would be x mole per dm cube multiplied by x mole per dm cube, और उसकी जो वैल्यू होगी that would be x square is equal to Ksp की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 2 times 10 power minus 6. तो इसका 2 times 10 power minus 6 का अंडर रूट ले लो, and that comes out to be क्या आता है? 2
ठीक है, इसका अंडर रूट अगर लें तो 0.00141 0.00 एक्स की वैल्यू आती है 0.00141 मोल per decimeter cube. That's अच्छा, that's the solubility of AgCl under normal conditions. जब कुछ भी पानी में ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ आप AgCl डिसॉल्व कर रहे हो, तो AgCl इतना डिसॉल्व होता है और इन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.00141 मोल per dm cube है. तो आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन ओवर हियर. ठीक है, दिस कितना डिसॉल्व हो रहा है? 0.00141 इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और ये कितना डिसॉल्व हो रहा है? 0.001. सेम होगा एग्जैक्टली. So point mole per dm cube, and this one is the same. अच्छा, anyways ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं. अब अगला जो पार्ट है दैट इज कि व्हाट वुड हैपन, व्हाट्स गोइंग टू हैपन. क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी देते हैं. द क्वेश्चन इज फाइंड द न्यू सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl अच्छा, find the new solubility of AgCl when 0.2 mole per dm cube या in 0.2 mole per dm cube NaCl. तो अब हम AgCl को ना डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं in NaCl. ठीक है, सो दिस AgCl इज नाउ बीइंग एडेड उसके अंदर 0.2 मोल per dm cube. NaCl सोल्यूशन पहले से पड़ा हुआ है, उसके अंदर हम डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द न्यू सॉलिबिलिटी. इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन आपको आएगा टू फाइंड द न्यू सॉलिबिलिटी. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि पहले तो ये याद रखना कि NaCl की प्रेजेंस की वजह से what would happen is कि because of the presence of NaCl solution के अंदर Cl आयंस बहुत ज्यादा होंगे, 0.2 मोल per dm cube. तो ये पूरा जो इक्विलिब्रियम होगा ये किधर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, AgCl की सॉलिबिलिटी जो होगी वो और कम हो जानी चाहिए. इज दिस पार्ट क्लियर? रियान, इज दिस क्लियर? फातिमा, फरजान, इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक है, जी सर, क्लियर है. चलो ठीक है. सो 0.2 मोल per dm cube NaCl अगर होगा तो Cl आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी सोल्यूशन के अंदर और ये पूरा इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. यानी आपकी जो सॉलिबिलिटी होगी 0.00141 से काफी कम हो जाएगी. 0.00141 अभी डिसॉल्व हो रहा है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर. NaCl की प्रेजेंस में इट वुड बी मच मच लेसर. अच्छा, तो इसको हटा देते हैं और अब मैं कहता हूं कि जी सॉलिबिलिटी डिक्रीज करके ना x हो गई है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नई सॉलिबिलिटी क्या है. तो वो x हो गई है. और x की वैल्यू रिमेंबर कि बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि पहले ही बहुत छोटी वैल्यू आ रही थी 0.00141. अब उसकी सॉलिबिलिटी और भी कम होगी. अच्छा, Cl आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो x प्लस, क्योंकि Cl आयंस तो पहले से सोल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं, कितने? 0.2 मोल per dm cube, क्योंकि NaCl पड़ा हुआ है पहले से सोल्यूशन के अंदर. अच्छा, अब सोल्यूशन के अंदर Cl आयंस की कॉन्सेंट्रेशन वुड बी वेरी हाई, क्योंकि 0.2 मोल per dm cube पहले से पड़ा हुआ है और वो x वो अमाउंट है जो AgCl डिसॉल्व होने की वजह से आ रही है. ठीक है, और x इज अ वेरी टाइनी अमाउंट. तो एक तो हम ये अजम्पशन कर सकते हैं कि अगर लेट्स से AgCl डिसॉल्व होता है और x मोल per dm cube Ag+1 आयंस बनते हैं और Cl आयंस इधर से AgCl डिसॉल्व होने की वजह से सोल्यूशन के अंदर x मोल per dm cube आते हैं, तो ये x की वैल्यू बहुत छोटी होगी. ठीक है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अब सॉलिबिलिटी बहुत कम होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ होगा. तो वन असम्पशन इज कि ये दोनों आपके आयंस की ना कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इसको सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज द सेम KSP एक्सप्रेशन व्हिच वाज कि KSP की वैल्यू हमारे पास पहले से थी. क्या थी हमारे पास? 2 × 10⁻⁹
-6. अच्छा, silver ion concentration into Cl ion concentration. अच्छा, so your Ksp is 2 times 10 to the power -6. Ksp की वैल्यू तो वही रहेगी, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। और ये याद रखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जितने भी हैं वो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होते हैं। अच्छा, नाउ सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन वो x है। रिमेंबर दिस इज द न्यू x, मतलब अब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी। और Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इट्स x प्लस 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। क्योंकि सोल्यूशन के अंदर Cl आयंस पहले से 0.2 मोल पर डीएम क्यूब पड़े हुए हैं, वो थोड़े बहुत x जो आ रहे हैं ना, वो AgCl डिसॉल्व होने की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, ना वन अजम्पशन, या तो आप इसको इसी तरह सॉल्व कर लो, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लो। बट वन थिंग इज कि ये जो वैल्यू है ना, दिस वन ओवर हियर, क्योंकि x एक बहुत छोटी वैल्यू है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.2 मोल पर डीएम क्यूब के बराबर ही होगी, क्योंकि x की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो एक छोटी वैल्यू में 0.2 ऐड करोगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पहली वैल्यू x की, जब पुरानी वैल्यू थी x की, वही बहुत छोटी थी, 0.00141 मोल पर डीएम क्यूब। तो अगर 0.00141 मोल पर डीएम क्यूब को भी अगर 0.2 में ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 ही आएगा आंसर। और अब तो सॉलिबिलिटी और कम होगी है, तो x की जो नई वैल्यू होगी वो तो इससे भी कम होगी। तो इसलिए x प्लस 0.2 करने की जरूरत नहीं है, उसको आप 0.2 सिंपली लिख सकते हो। सो इट वुड बी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। इस x को हम खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेटली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 0.2 में वो ऐड होगा तो देयर वोंट बी मच ऑफ अ डिफरेंस। एंड देन यू सॉल्व फॉर दिस, और जब आप सॉल्व करोगे 2 टाइम्स 10 पावर -6 डिवाइड बाय 0.2, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज द न्यू वैल्यू ऑफ x नाउ। और अगर ये कैलकुलेटर पे करें तो इट्स गोइंग टू कम आउट टू बी, कितना होगा, 2e -6 divide the whole thing by 0.2, and I'm getting 1 times 10 power -5. So x की value is coming out to be 1 times 10 power -5 मोल per dm cube, जो कि क्लियरली कम, और बहुत ज्यादा कम हो गई है। पहले 0.00141 थी, now it's a lot lesser, यानी solubility has decreased. Due to common ion effect, so the solubility has decreased a lot. So मैं फिर से क्विक रिकैप के एक बार फिर एक्सप्लेन कर लूं कि ये पुरानी सॉलिबिलिटी निकाली थी जब आपके पास कोई NaCl बीच में डिसॉल्व नहीं था, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर पहले से। तो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन और Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों x मोल पर डीएम क्यूब थे, क्योंकि अगर AgCl x मोल पर डीएम क्यूब डिसॉल्व होगा तो XA और XA बनेंगे। तो हमने Ksp निकाला एंड वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हिच केम आउट टू बी 0.0141 मोल पर डेसिमीटर क्यूब। सेकंड था कॉमन आयन की प्रेजेंस के अंदर, इफ यू ऐड 0.2 मोल पर डीएम क्यूब NaCl, इसका मतलब है कि आपने, अब AgCl डिसॉल्व हो रहा है, x मोल पर डीएम क्यूब, x मोल पर डीएम क्यूब Cl आयंस बनेंगे, लेकिन सोल्यूशन के अंदर 0.2 मोल पर डीएम क्यूब Cl आयंस पहले से पड़े हुए हैं, क्योंकि NaCl बीच में डिसॉल्व है 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, सो द सोल्यूशन ऑलरेडी हैज, तो आपके Cl आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इज मच ग्रेटर नाउ, ठीक है। वो थोड़े बहुत जो AgCl डिसॉल्व होने की वजह से आ रहे हैं, और काफी ज्यादा जो Cl आयंस की वजह से आ रहे हैं। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिबिलिटी नाउ, एंड इसको हमने फिर Ksp के एक्सप्रेशन में पुट किया था, और एक हमने अजम्पशन की थी, हमने कहा था x की वैल्यू अब बहुत छोटी होगी, क्योंकि ये पूरा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ होगा, AgCl से जो आयंस आने थे वो बहुत ही कम होंगे अब, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू रिजॉल्व दैट मच बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन। तो x की वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी हमने अज्यूम की थी, तो x प्लस 0.2 को हमने अज्यूम कर लिया था कि वो 0.2 के बराबर ही होगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x वुड बी सो स्मॉल। और इसको इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो, वो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन इट्स रिकमेंडेड नॉट टू एक्चुअली सॉल्व
यूजिंग दिस ये assumption कर लेना, जो कॉमन आयन होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 अप्रॉक्सीमेटली ले लेना, इस x को इग्नोर कर लेना, so your calculations would be much simpler and you would be able to find the value of x this way. So is this clear, Fatma? Is this clear? Abdul Rahman, clear है? Yes or no? You can. ठीक है, तो ये इसी तरह का एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। एंड रिमेंबर द फ्रेज कॉमन आयन इफेक्ट, कि अगर कोई पूछेगा ना कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, आपने कहना है कॉमन आयन इफेक्ट, ये उस सेंटेंस के अंदर वर्ड यूज करना है। अच्छा, दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट केएसपी, ठीक है। केएसपी का पार्ट खत्म हो गया। वी कैन व्हाट वी कैन डू नाउ इज, एक तो ये दो क्वेश्चंस, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चंस आने, या तो वो पूछेंगे सॉलिबिलिटी गिवन होगी केएसपी फाइंड आउट करो, या केएसपी गिवन होगा सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करो, एंड दिस इज द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक दो बीच में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन, कि क्वेश्चन है कि फाइंड, आई मीन दिस एन एक्चुअल पास पेपर क्वेश्चन, वैल्यूज मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, कि फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ अ लाइमस्टोन, मतलब वही चीजें घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ अ लाइमस्टोन statue that dissolves when 100 dm cube of acid rain falls on it. अच्छा, 100 dm cube of acid rain falls on it, और उसने दिया हुआ है कि जी केएसपी ऑफ कैल्शियम सल्फेट जो है ना, दैट इज, फिर से मैं अपनी तरफ से कोई वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से इट्स 0.125 केस मोल स्क्वायर्ड। अच्छा, ये दिया हुआ है बस, और से क्या, फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ अ लाइमस्टोन स्टैच्यू दैट डिसॉल्व्स व्हेन 100 dm cube of acid rain falls on it। क्वेश्चन सिंपल है, बस उसने बहुत घुमा फिरा के मतलब केएसपी वो मोल्स के साथ लिंक किया हुआ है। अच्छा, नाउ लाइमस्टोन व्हाट्स लाइमस्टोन? लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। एसिड रेन क्या होता है? दैट्स H2SO4। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। व्हाट वुड हैपन? व्हाट वुड हैपन है इसके, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और कैल्शियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट। अब ये वो स्टैच्यू है, लाइमस्टोन स्टैच्यू, इसकी we need to figure out the mass of this. Now the first thing is, what's going to be produced? 100 dm cube acid rain है, तो end result is you're going to get, अच्छा end result is you're going to get, मतलब जो भी रिएक्शन होगा लाइमस्टोन स्टैच्यू डिसॉल्व करेगा, you're going to get a 100 dm cube solution of calcium sulfate, ठीक है, that's what you're going to get। और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? तो हम उसकी मैक्सिमम सैचुरेशन, मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो हमें केएसपी से पता लग जाता है, क्योंकि केएसपी जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपको बताता है। तो वी कैन फाइंड कि जब वो लाइमस्टोन स्टैच्यू डिसॉल्व होगा ना और कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होगा, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड द मैक्सिमम concentration that's possible in a solution using KSP। तो यहां पे हम KSP को बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं कि जी कैल्शियम सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस बन सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, एंड इट्स अ 100 cm क्यूब सॉल्यूशन। तो लेट्स से x मोल पर dm क्यूब अगर कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इट कुड हैव। तो x कैल्शियम आयंस बनेंगे और x सल्फेट आयंस बनेंगे, और well x मोल पर dm क्यूब इज डिसॉल्विंग।
तो KSP की वैल्यू इज विद यू, इट्स 0.125. KSP क्या होगा इस केस में? कैल्शियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन इनटू SO4 -2 कॉन्सेंट्रेशन, और ये x की वैल्यू निकाल लो, इट वुड बी 0.125 अंडर रूट. ठीक है, सो 0.125, 1 second. So you take the under root of 0.125 में 0.353 आता है. So it comes out to be 0.353 mole per decimeter cube. So I'm using KSP over here. ठीक है, KSP यूज करने से I've been able to figure out कि जी मैक्सिमम जो कैल्शियम सल्फेट किसी भी सोल्यूशन के अंदर हो सकता है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दैट्स 0.353 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. सो कमिंग बैक, वॉल्यूम हमें पता है क्योंकि 100 डीएम क्यूब एसिड रेन थी, तो दैट मींस के द वॉल्यूम इज 100 डीएम क्यूब जो भी सोल्यूशन बना है कैल्शियम सल्फेट, और उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मैंने फिगर आउट कर ली यूजिंग KSP, एंड दैट्स कमिंग आउट टू बी 0.353 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. क्योंकि मैक्सिमम मास निकाली थी ना स्टैच्यू की, तो सोल्यूशन जो बनेगा जब वो डिसॉल्व होगा तो वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड होगा. ठीक है, फुली सैचुरेटेड. अच्छा, नाउ कैल्शियम सल्फेट का आई हैव द वॉल्यूम सोल्यूशन का, एंड आई हैव द मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन. और वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पास होता है तो यू कैन फाइंड मोल्स, N इज इक्वल टू C इनटू V, एंड इफ यू फाइंड मोल्स तो 100 इनटू 0.353 और क्या है ये 35.3 आई थिंक, so it would come out to be 35.3 moles, यानी वो जो it would come out to be 35.3 moles. तो 100 डीएम क्यूब सोल्यूशन मैक्सिमम सैचुरेटेड कितना हो सकता है? 0.353 मोल पर डीएम क्यूब अकॉर्डिंग टू द KSP. और उसके मोल्स, यानी उसके मोल्स हमने निकाले कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके, एंड वी फाउंड आउट के द मोल्स आर 35.3 मोल्स. तो स्टैच्यू कितना डिसॉल्व होगा? 1:1 है, तो स्टैच्यू जो कैल्शियम कार्बोनेट स्टैच्यू है वो भी एग्जैक्टली 35.3 मोल्स डिसॉल्व होगा, और उसकी मास निकालनी है. तो हाउ डू यू फाइंड मास? मास इज मोल्स मल्टीप्लाइड बाय MR. So that's moles multiplied by MR, and that would give you moles कितने? 35.3. कैल्शियम कार्बोनेट की MR 100.1 बनती है क्योंकि कैल्शियम 40.1 है, प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3, एंड क्या बनेगा 35.3 इंटू 100, 3530 आई थिंक, मतलब 0.1 को इग्नोर कर लो, that is going to be your answer. So just to recap, मैंने कहा था क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस किए. समटाइम्स you'll get questions like these जिसमें एवरीथिंग उन्होंने ना घुमा फिरा के पूछी होगी. तो व्हाट वी डिड वाज कि उसने KSP दिया हुआ था कैल्शियम सल्फेट का, और कहा हुआ था कि स्टैच्यू डिसॉल्व हो रहा है लाइमस्टोन का एसिड रेन के अंदर. तो वी न्यू कि कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वी न्यू द इक्वेशन. तो उसने कहा था इसकी मास सिखा लो, और उसने कहा था 100 डीएम क्यूब एसिड रेन है, तो सोल्यूशन का जो कैल्शियम सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा दैट वुड बी 100 डीएम क्यूब. और उस सोल्यूशन की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमने फिगर आउट कर ली थी कि द मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन वी डिड फिगर आउट यूजिंग KSP, क्योंकि KSP की वैल्यू थी तो हमने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम की थी कि जी x मोल पर डीएम क्यूब x मोल पर डीएम क्यूब दोनों बन जाएंगे. वी रोट डाउन द KSP एक्सप्रेशन which was calcium ion concentration into SO4 -2 concentration, जिससे हमने कैल्शियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी निकाल ली थी कि मैक्सिमम सॉलिबिलिटी जो पॉसिबल है ना एक 100 डीएम क्यूब सोल्यूशन की, दैट्स 0.353, जिससे वी फिगर आउट द मोल्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है. सो वी फिगर आउट द मोल्स, इसके मोल्स पता लग गए तो स्टैच्यू के भी मोल्स पता लग गए, जिससे हमें स्टैच्यू की मास पता लग गई. ठीक है, सो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे कैन कम. ठीक है, रेयर होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस दे कैन कम योर वे. ये क्लियर है?
Taha Shameen, is this clear? Musa, clear? Dua. अच्छा, सो बाकी देख लेंगे पास पेपर के अंदर कोई और अजीब किस्म के क्वेश्चंस इस तरह के हुए तो वो कर लेंगे। I'll just केस भी हमने कर लिए। So I'll send you a worksheet, ठीक है? We're running out of time, probably 11:08 हो गया। अच्छा, so एक तो मैंने वो जो पहले से assignments दी हुई, try and complete those assignments, and secondly I'll send you a small worksheet with past paper questions related to KSP, तो वो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है? तो प्रॉब्ली आज ही शायद कर दूं, उसमें थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनीवन? इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो यहाँ पे चैट के अंदर राइट प्रेजेंट and once you've written present you're allowed to leave the class. और कोशिश क्या करो सारे प्रेजेंट लिखा करो, बिकॉज आई सी मोर नेम्स लेकिन सारों ने प्रेजेंट नहीं लिखा होता।